याद करने के जो लाइन यूज़ किया ना अपने आप के लिए, सो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मामू कल फेर जैन बी कॉपर, मामू कल फेर जैन बी कॉपर। सो जस्ट ये कमेमोरेशन के लिए होता है, सो इसके ये सेंस नहीं, कुछ सेंस बनती है नहीं, जस्ट एक। Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you the topic is the fertilizer, and in this video we will also discuss the micronutrients, macronutrients, and what are the other things that are totally related with this topic. Okay, so what is the content that I will share with you, that means what is the headlines. Okay, so first one is the fertilizer. What is the fertilizer and why we apply it to the land and when we have to apply it. Okay, so next one is the micronutrients and macronutrients, and the more next one is the requirements for fertilizer. Okay, so and if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe and let's move on. So since 5000 BC means 5000 Qabl az-Masih, 5000 before Christ, manure was used for fertilizer, zircase and nutrients purposes. So जो फुजला होता था, जो यूज़ कर सकते थे उसको मैन्योर के लिए, खाद के तौर पर, ठीक है, फर्टिलाइजर के तौर पर, ठीक है, एज ए फर्टिलाइजर. So an organic compound used to fertilize land and it usually consists of feces and urine of domestic livestock. तो 5000 कबल अज़ मसीह जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था उस वक्त, ये यूरिया, ये जो फास्फेट वगैरह ये तो नहीं थे ना, तो उस वक्त किसको यूज़ किया जाता था? ये जो मैन्योर होता था, जो एनिमल्स का, इसको हो या इसका यूरिन जो होता है उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वही न्यूट्रिएंट्स होते थे जो कि आजकल की जो है ना फर्टिलाइज़र में होते हैं, ठीक है. सो दैट्स वाई बिफोर 5000 BC the manure and the urine of the animals and their feces were used as the fertilizer for the land. So next one is most important components. What are the most important components in the fertilizer should be that are necessarily needed by the land? Okay, so first one is the nitrogen, second one is the phosphorus, and the third one is the potassium. So these are the three components that are very necessarily for the land fertility. So the less important components, first one is the sulfur, next one is magnesium, and third one is calcium. So these are the less important, like their up and down can be like compensated, but these are the important, they should be available to the land. So next one is the fertilizer. What is fertilizer? So the substances added to soil to make up the deficiency of essential elements. Essential elements means most important elements that we have discussed: nitrogen, phosphorus, potassium. Okay, so deficiency of the essential elements like nitrogen, phosphorus, potassium required for proper growth. So अगर ज़मीन में ये तीन कंपोनेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका लेवल कम हो गया, जितना होना चाहिए था, इनकी क्वांटिटी कम हो गई है, उस क्वांटिटी को कवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, जो भी है वो, ठीक है. सो नेक्स्ट वन, दिस एनहेंस द फर्टिलिटी. तो जब वो एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अगर अप टू द मार्क होंगे तो फर्टिलिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली. एंड रिप्लेनिश केमिकल एलिमेंट्स टेकन अप बाय द प्रीवियस क्रॉप्स. और ये क्या करते हैं, एक तो फर्टिलाइजर इंक्रीज करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, जो पहले की फसलों ने ज़मीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लिए होते हैं, ये फर्टिलाइजर उसको रिप्लेनिश करते हैं, दोबारा से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So next one is elements essential for plants from the soil. Nutrients are divided into two types. तो जो plants के लिए जो है ना essential elements होते हैं ना, उनको हम nutrients कहते हैं. अगर आता है क्वेश्चन आता है कि nutrient क्या होते हैं, so essential elements for the plants are known as nutrients. So there are basically two types of the nutrients. So first one is micronutrients and the second one is the macronutrients. Micro mean and macro mean these are divided basically on the base of the quantity. If a nutrient is applied in a little amount, so then that will be called micronutrient, and if it is applied in the large amount, so then it will be called macronutrient.
Okay, so I will discuss further that what are the macro and what are the micronutrients. Okay, so micronutrients, and there I have written that trace elements. So sometimes हम अब कभी कभी देखते हैं कि किसी कंपाउंड में कम से कम क्वांटिटी में कौन सी चीज़ें हैं, मतलब अगर दो कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें जो है ना एक है 50% है और दूसरा आपके पास आ जाता है 48%. सो जो आगे इसके अलावा दो कंपोनेंट्स के अलावा कोई तीन चार कंपोनेंट्स जो कि कुछ कुछ फ्रैक्शन में है, तो मैं उनको कह सकता हूँ ट्रेस अमाउंट, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में. सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी थोड़ी क्वांटिटी में यूज होता है, इसको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कह देते हैं. ठीक है. सो द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट. सो क्लियर है. सो ये मैंने डिस्कस किया है कि स्मॉल क्वांटिटी की वजह से हम उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. सो नेक्स्ट चलते हैं. सो ये हैं जी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर mentioned in your textbook. First one is the manganese, second one is the molybdenum, chlorine, iron, zinc, boron, copper. So ये आपको याद होना चाहिए. क्वेश्चन आ जाता है what are the micronutrients, define and give example. ठीक है. So इसको मैंने याद करने के जो लाइन यूज़ किया ना अपने आप के लिए, so वो आप भी यूज़ कर सकते हैं. मामू कल फेर जैन बी कॉपर, मामू कल फेर जैन बी कॉपर. सो जस्ट ये कमेमोरेशन के लिए होता है. सो इसके ये सेंस नहीं, कुछ सेंस बनती है नहीं, जस्ट एक याद रखने का एक मेथड होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट होते हैं हार्मफुल फॉर प्लांट्स इफ अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी. अब अगर आप सोचें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करूँगा तो क्या बेनिफिट होगा? नहीं, ये हार्मफुल होगा. ये प्लांट्स को उस लैंड को अफेक्ट करेगा. सो जितनी अमाउंट सजेस्टेड है उसी के अंदर रह के ही आप उसको यूज़ करना है. और वो कितनी है? 6 से 200 ग्राम पर एकड़. एक एकड़ में 6 से लेकर 200 ग्राम की रेंज तक आपने ग्राम में यूज़ करना है बस. इससे अगर ज़्यादा जाएंगे तो भी इफेक्ट है, अगर नीचे जाएंगे तो भी इफेक्ट होगा. ठीक. सो अब फर्टिलाइजर कैसे अप्लाइड होता है? जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या करते हैं, पानी के अंदर मिक्स करते हैं, उसको सोल्यूबल करते हैं, और फिर मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ. ठीक. ये देखें, ये जो है ना इसके अंदर मिक्सर बना हुआ है और उसको नीचे से जो है ना तो स्मॉल कैनल उसको फिर जहाँ पर अप्लाई करना तो वहाँ पर ले जाते हैं. ठीक है. सो ये वाटर सोल्यूबल के केस में होता है. सो नेक्स्ट होते हैं, अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी इनको कहते हैं, ये नाम याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है. सो द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एज इट इज आल्सो डिपिक्टेड फ्रॉम नेम मैक्रो. सो चूंकि नाम से भी शो हो रहा है कि मैक्रो मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है, और इसको प्राइमरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप. ठीक है. सो नेक्स्ट होते हैं, अब इसमें ये हैं जी. सबसे पहले तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, एनपीके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा ये हैं ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है. सो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. अब ये तो आप तीन याद हो जाते हैं, एनपीके. ठीक है. ठीक है. अब ये कैसे याद करेंगे? ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओ सल्फर चौधरी काश मर जाना, ओ सल्फर CH से चौधरी काश मर जाना. ठीक है. तो इसको भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. अच्छा जी, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ये जो है ना ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, और इसकी कितनी क्वांटिटी होती है? 5 से 200 किलोग्राम पर एकड़. जो लास्ट केस था वो था 6 से 200 ग्राम में, और ये किलोग्राम में. ठीक है. सो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना. सो रिक्वायरमेंट क्या है फर्टिलाइजर के लिए? एवरी कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी अ फर्टिलाइजर. मतलब कि हमारा जो डिजायर्ड कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन. अब इसका मतलब वो कहता है कि नाइट्रोजन का हर कंपाउंड एज ए फर्टिलाइजर यूज नहीं हो सकता. ठीक है. सो नेक्स्ट होते हैं, सो द डिजायर्ड न्यूट्रिएंट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर. अब जो एज ए फर्टिलाइजर आपने यूज करना है वो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए ताकि वो प्लांट को इजीली एक्सेसिबल हो. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल इन स्टोरेज एंड सॉइल. और जो फर्टिलाइजर हो उसको अगर हम किसी जगह पर स्टोर करें तो भी वो स्टेबल है. ये ना हो कि वो टूट जाए या उसकी जो शक्ल है, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए, ऐसा ना हो. ठीक है. सॉइल में भी वो स्टेबल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी डेलिक्वेशंट एंड बिकम हार्डन. डेलिक्वेशन क्या होता है? डेलिक्वेशन ये होता है कि अगर उसको हम ओपन एयर में रखें तो वो हवा में से नमी को ऑब्जॉर्व करके, वाटर ऑब्जॉर्व करके हार्ड हो जाए. ये होता है डेलिक्वेशन. तो कहता है फर्टिलाइजर ऐसा भी नहीं होना चाहिए. अगर हम उसको ओपन एयर में रखें तो हवा में से ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व करके हार्ड ना हो जाए. सही है. सो नेक्स्ट वन इज इट शुड बी चीप, और ये सस्ता होना चाहिए. ठीक है ना. तो एक्सपेंसिव ना हो कि जितना हमें इकोनॉमी आए ना फर्टिलिटी से, जो क्रॉप प्रोडक्शन से, और जितना हम उस पर फर्टिलाइजर पर इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन, न्यूट्रिएंट कैन बी वाटर इनसॉल्युबल.
कहते हैं न्यूट्रिएंट जो है वाटर सोल्युबल भी हो सकते हैं, इनसोल्युबल भी हो सकते हैं, बट देन इट विल सीप इनटू द लैंड स्लोली। लेकिन जो वाटर सोल्युबल है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जो है ना अंदर जाता है, सीप करता है, अंदर जज़ब होता है, ठीक है। एंड विल बी रिसीव्ड बाय प्लांट लेट, और वो फिर पौधों को बाद में मिलता है थ्रू द रूट, ठीक है। सो सोल्युबल भी होते हैं, इनसोल्युबल भी होते हैं। अब एसेंशियल क्वालिटीज फॉर गुड फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, सो इसको आप ध्यान से सुनिए। सो द न्यूट्रिएंट शुड बी रेडली अवेलेबल, मतलब बहुत जल्दी से अवेलेबल होना चाहिए प्लांट्स को। इट विल बी पॉसिबल इफ दैट विल बी वाटर सोल्युबल, जाहिर है अगर वाटर में सोल्युबल होगा तो वो जल्दी से उस तक पहुंच सकता है, ठीक है। और अगर वो वाटर सोल्युबल नहीं तो वो थोड़ी देर लग सकती है, वो रेडीली अवेलेबल नहीं होगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, सही है। सो नेक्स्ट वन, शुड नॉट बी इंजूरियस टू हेल्थ, और ये अगर यूज़ करता है तो वो अगर हम उसी मतलब लैंड पर जाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजर को अप्लाई किया हो तो वो नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है ना। सो इंजूरियस टू हेल्थ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। इट शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, अब जो सॉइल की पीएच है ना उसको चेंज ना करे, जो कि एक स्पेसिफिक ना 6 से 7 या 7.5 है राउंड अबाउट। सो ये ना तो उसको उसकी बेसिसिटी बढ़ाए ना उसकी एसिडिटी बढ़ाए, जो एक स्पेसिफिक रेंज है उसको उतना ही रहने दो, उसको अल्टर ना करे, चेंज ना करे, ठीक है। एंड शुड बी स्टेबल, और स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि डिकम्पोज ना हो, अपनी फॉर्म चेंज ना करे। सो ये साइंस। सो बाय रेन, अगर बारिश आती है या वाटर है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट प्लांट्स कैन गेट इजीली, तो इसको ऐसी फॉर्म में चेंज होना चाहिए जो कि प्लांट इजीली एक्सेस कर सके। मतलब अगर यूरिया लेना तो वो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको अगर पानी में मिक्स कर दें तो वो ऐसी फॉर्म में बन जाए जो कि जल्दी से प्लांट तक एक्सेसिबल हो जाए इन केस ऑफ रेन या वाटर, ठीक है। सो ये आज का हमारा आर्टिकल था, फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं दोनों केसेस में। So if you find some good thing from this video and you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe. Stay tuned, stay happy. Thank you.